Swati from Kendriya Vidyalaya Andrewsganj. We are going to make a stick puppet today. This we have learned in our second spell of in-service course. And for this we need A4 size sheet and some ice cream sticks. You can use colorful ice cream sticks to make the puppets attractive, and colorful sheets also. First you need to draw and then you can color it, and you can simply cut it using the scissor. Stick puppet के लिए we need ice cream sticks to give them a base. It is very easy for the students to make stick puppets in the class. They can take the help of the teacher while using the cutting of the paper. And on the back side you can simply paste it with the help of tape, and your stick puppet is ready. Similarly, I have made another puppets for the storytelling. This is a bird, this is a balloon, there is another bird, and there is a tree. So for this you can guide students to draw, and then you can help them for cutting, and then they can add some decoration. They can use this type of colorful papers also, and some outlining, coloring. So इससे they will involve in the the learning process. They will know how to make these puppets and how to use them. Okay, इनको हम use करेंगे in the form of a story. You can guide students to develop a story on their own. This is an English story. Mittu and the Yellow Mango. Okay. In simple words, students can narrate the story. Mittu was a green parrot. One day, Mittu was flying. He saw a big yellow mango on a tree and wanted to eat it. A crow was sitting on the tree. He said, "Go away, Mittu. This is my tree. I will eat this mango." Mittu was sad. He got an idea. He got a big red balloon and burst it. The crow got scared and flew away. Mittu ate the mango and he was very happy. Thank you. Hello friends, good morning to all of you. Today we will learn about a story. Three Little Pigs, Chapter 2, Marigold, Class 1. There were three little pigs named Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house made of straw. Monu lived in a house made of wood. Gonu lived in a house made of bricks. One day a fox came to blow down the house of Sonu. "Ha ha ha! I will huff and puff and blow your house down." Fox huffed and puffed, "Ooh," and blow down the house of Sonu. Sonu ran away to Monu's house. Fox came here also. "Ha ha ha! I will huff and puff and blow your house down." Ooh! And Fox huffed and puffed and blow down the house of Monu also. Sonu Monu ran to Gonu's house. Fox came here also. "Ha ha ha! I will huff
and puff and blow down your house. Hoo, hoo. But he could not blow down the house of Sonu, Monu and Gonu because it was made up of bricks and it was strongest. And at last Fox ran away. And Sonu, Monu, Gonu lived in the house of brick happily ever. So friends, house made up of brick is strongest. We learn from the story that brick's house is strongest house. So Sonu, Monu, Gonu lived happily ever. Thank you and have a nice day. नमस्कार सभी को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, सच्चे दोस्त की कहानी। एक बार एक गांव में एक किसान था। उस किसान के पास एक गधा था जो बहुत मेहनती था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे कि अरे वाह, तुम्हारा गधा तो कितना काम करता है। उस किसान के पास 2 और जानवर थे, एक बिल्ली और एक मुर्गा। ये तीनों आपस में साथ रहते थे, पर किस गधे को मुर्गा अच्छा नहीं लगता था। वो उसका दोस्त तो था, पर वो सुबह सुबह उठा देता था, तो इसीलिए गधा मुर्गे से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसे बिल्ली पसंद थी, वो उसके साथ हमेशा खेलती थी, है ना। तो एक बार गांव में चोर आ गए। अब चोर ने सोचा कि अरे, इस किसान के पास तो एक गधा है जो बहुत काम करता है, क्यों ना हम उसे चुरा लें। तो रात में वो गधे को चुराने के लिए आए। वो गधे को पकड़ के ले जाने लगे। तो गधे ने रास्ते में जो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, तो गधे ने बिल्ली की तरफ देखा और उससे मदद मांगी कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी मदद करो। तो बिल्ली तो उन चोरों को देख के डर के भाग गई वहाँ से। फिर जब गधा को वो लेके जा रहे थे चोर, तो वहाँ पे मुर्गा दिखा। अब गधे ने सोचा कि अब इसी से ही मदद मांगता हूँ। तो उसने बोला कि मुर्गे दोस्त, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? ये देखो, मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो मुर्गे ने बोला, अरे बिल्कुल, तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्या। और मुर्गे ने बांग देनी, यानी कि अपनी आवाज़ में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। और आपको तो पता है, जब मुर्गा चिल्लाता है तो क्या होता है, सबको लगता है कि उजाला हो गया, दिन निकल गया। तो किसान भी उठ गया कि अरे, मुर्गा बांग दे रहा है। तो जब किसान उठा तो उसने देखा, अरे मेरे गधे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। और चोर किसान को देख के वहाँ से भाग गए गधे को छोड़कर। तो यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो मुसीबत में हमारा साथ दे, हमारा सच्चा मित्र कौन होगा? वही होगा। जैसे गधे का सच्चा मित्र कौन था? मुर्गा। तो हमें हमेशा अपने दोस्तों की मुसीबत में हेल्प करनी चाहिए, और वही दोस्त सच्चा होता है जो हमें मुसीबत में बचाए। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आज मैं आपके सामने पपेट के थ्रू एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही अच्छा हेल्पिंग नेचर का लड़का था। उसने स्कूल में सीखा था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो एक दिन चिंटू जब स्कूल से घर जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक डॉगी देखा, पर वो डॉगी को चोट लगी हुई थी। तो चिंटू ने सोचा कि मुझे तो इसकी हेल्प करनी चाहिए, मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो उस चिंटू ने आसपास सबको देखा, अरे अरे अरे, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है यहाँ पे, और इसको तो चोट भी लगी है, मैं क्या करूँ। तो चिंटू उसको अपने साथ अपने घर ले गया। घर ले जाके उसने उसकी डॉगी की बहुत हेल्प करी। उसको पट्टी किया, उसको फर्स्ट एड दिया, जिससे कि उसकी जो चोट थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। पर चिंटू को तो पता था कि ये डॉगी किसी और का है, तो वो हमेशा थोड़ा उदास रहता था कि कहीं मैं इस डॉगी के साथ ज़्यादा खुश रहूँगा और इसका मालिक आके मुझसे ले जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना।
तो एक दिन चिंटू और डॉगी जब अपने घर आए तो वहाँ पे उसने डॉगी की मालिक को देखा और वो मालिक डॉगी को देख के बहुत खुश हुआ। तो उसने बोला चिंटू से कि चिंटू, क्या तुम इस डॉगी को रखना चाहोगे? चिंटू, बिल्कुल, मैं तो इसे रखना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसके मालिक ने डॉगी को चिंटू को दे दिया। चिंटू ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मालिक ने बोला क्योंकि तुमने इतनी ईमानदारी से इस डॉगी की हेल्प की है, तो ये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है। आपको पता चल गया होगा कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। हमें हमेशा सभी की मदद करनी चाहिए, जैसे चिंटू ने डॉगी की। आप भी हमेशा दूसरों की मदद करना जब आपको लगे कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। Good morning, students. Today we will learn about a story named Unity in Strength. एकता में बल है। आज हम इस स्टोरी को एक पपेट्स के माध्यम से सीखेंगे। ओके? एक गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में लड़ते रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। चारों बेटे बहुत निकम्मे थे, आलसी थे। लेकिन किसान बहुत काम करता था, खेत में अनाज उगाता था और बहुत पैसा कमाता था। लेकिन वो अपने बेटों की इस आदत से परेशान था कि उसके बेटे आपस में लड़ते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं और कोई मेहनत नहीं करते हैं, आलसी हैं, आलसी बन गए थे वो। इसके लिए उसने क्या तरकीब सोची। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को कहा कि पुत्रों, जाओ जंगल में जाओ और लकड़ी का एक गट्ठर लेके आओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। उसके चारों बेटे जंगल में गए और वो एक लकड़ियां इकट्ठी करके लाए और उन्होंने उस लकड़ियों का गट्ठर बनाया, जैसा कि उनके पिता ने कहा। अब किसान ने कहा, सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि पुत्र, तुम इस गट्ठर को तोड़ो। बड़े बेटे ने उस गट्ठर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका और हार के वो बैठ गया। अब किसान ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम इस गट्ठर को तोड़ो। अब उसका दूसरा बेटा आया और उसने गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं तोड़ सका। अब बारी थी तीसरे बेटे की। तो किसान ने अपने तीसरे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम इस गट्ठर को तोड़ो। तीसरे बेटे ने जब ये देखा कि मेरे दोनों बड़े भाई नहीं तोड़ पाए, तो उसको बहुत अंदर से चिंता हो रही थी कि मैं तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा। वह पहले ही पसीने पसीने हो गया था, लेकिन फिर भी उसने तोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हार कर वो भी बैठ गया। अब किसान ने अपने चौथे और सबसे छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि पुत्र, तुम इस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करो। चौथा बेटा आया और उसने सोचा कि जब मेरे बड़े भाई नहीं तोड़ पाए तो मैं क्या तोड़ पाऊंगा। वो तोड़ने से पहले ही हार मान चुका था, लेकिन उसने भी अपना प्रयत्न किया, अपनी कोशिश उसने पूरी करी और जब वो नहीं तोड़ पाया तो उसने अपने पिताजी को गट्ठर वापस दे दिया, ये कहते हुए कि पिताजी, मैं हार गया, मैं नहीं तोड़ सकता। इस तरीके से चारों बेटे उस गट्ठर को तोड़ने में असफल रहे और एक दूसरे को ब्लेम देने लगे कि तुम नहीं तोड़ पाए, तुम नहीं तोड़ पाए, तुम हार गए, तुम हार गए।
और लड़ने लगे आपस में। पिता ने कहा, किसान ने कहा कि बच्चों आपस में मत लड़ो, अब मैं इसका एक समाधान निकालता हूं कि तुम आओ और इस गट्ठर को खोलो और अपने अपने हाथ में एक एक लकड़ी ले लो। तो पिता ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को लकड़ी एक ली उसने और तोड़ने की कोशिश करी और वो लकड़ी टूट गई बहुत आसानी से। अब उसने दूसरे बेटे को बुलाया और उसने कहा कि तुम भी अपने हिस्से की लकड़ी लो और इसको तोड़ो, देखता हूं कि तुमसे टूट पाती है कि नहीं टूट पाती। दूसरा बेटा भी आया और उसने एक ही बार में उस लकड़ी को तोड़ डाला। अब किसान ने कहा कि किसान ने तीसरे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम आओ और तुम तोड़ने की कोशिश करो, देखता हूं तुमसे टूटती है कि नहीं टूटती। तीसरा बेटा बड़ा आत्मविश्वास में भर के उसने कहा कि हाँ हाँ पिताजी, मुझसे टूट जाएगी, जब दोनों भाइयों ने तोड़ ली तो मैं भी तोड़ सकता हूं। उसने अपने हाथ में वो लकड़ी ली और उसको बड़े आराम से उसने तोड़ दिया और हंसने लगा, हा हा हा, देखो पिताजी मैंने भी तोड़ दी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो। अब सबसे छोटे को बेटे को उसने बुलाया किसान ने और कहा, अब तुम अपनी बारी करो, अब तुम प्रयत्न करो, कोशिश करो। तो चौथे बेटे ने भी अपने हिस्से की लकड़ी ली, तोड़ने की कोशिश करी, उठाया और बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया 2 हिस्सों में। चारों बेटे बहुत खुश, बहुत हंस रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो हमने कम से कम एक एक लकड़ी तो तोड़ दी। अब किसान ने उनको समझाया कि देखो बच्चों, कि जब ये लकड़ी का गट्ठर था तब तुम इसको आसानी से नहीं तोड़ सके, तुम चारों में से कोई भी नहीं तोड़ सका, लेकिन जब ये अकेली लकड़ी थी तो तुमने बहुत आसानी से उसको तोड़ लिया सबने। आपको उसमें बिल्कुल भी कोशिश करने की भी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही एक जीवन का उदाहरण है कि जब आप अकेले अकेले रहोगे, लड़ते रहोगे आपस में, तो दुनिया को और समाज के लोगों को आपका फायदा उठाने का मौका मिलेगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपका नुकसान करेंगे। लेकिन जब आप मिलजुल के प्यार से रहोगे, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको हर काम में फायदा होगा, हर व्यापार में आपको फायदा होगा, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको लाभ होगा। इसलिए हमेशा मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहो, अपने परिवार में मिलजुल के रहो। इससे समाज के लोग आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एकता में रहने में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए सब बच्चे मिलजुल के प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहो। तो सब लड़कों ने कहा, हाँ पिताजी, हम सब मिलजुल के रहेंगे और आज से हम प्यार पूर्वक रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे और खेत में काम सब मिलजुल के करेंगे। उस दिन से चारों बेटे आपस में मिलजुल के रहने लगे और एक साथ खेत में काम करने लगे। उनको फायदा ही फायदा हुआ, दिन रात चौगनी उनकी उन्नति हुई, खूब पैसा उन्होंने कमाया और किसान भी अपने बेटों के साथ बहुत खुश हुआ। इस तरीके से उसकी भी सेहत सुधरने लगी धीरे धीरे और वो स्वस्थ हो गया, खुश रहने लगा। इस तरीके से पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के रहने लगा और बहुत खुश रहने लगे। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त। बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, आपको क्या शिक्षा मिलती है?
बताइए। यस, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में, अपने परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज के लोग, बाहर के लोग हमारा सब मजाक बनाते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं और हमें हर व्यापार में, हर काम में हमें नुकसान होता है। ओके, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है लोमड़ी और कौवा। एक बार की बात है, एक काला कौवा था, उसका नाम कालू था। आसमान में उड़ते उड़ते एक दिन उसे एक चीज का टुकड़ा जमीन पर दिखाई दिया। कालू ने उस चीज के टुकड़े को अपनी चोंच में उठाया और उड़ चला और वो आके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। तभी वहां पर एक लोमड़ी चलती हुई आई। लोमड़ी का नाम था सोमी। लोमड़ी जब पेड़ के नीचे से निकली तो उसने पेड़ के ऊपर एक कौवे को बैठा हुआ देखा। कौवे को बैठे हुए उसके मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, पूरे जंगल में तुमसे सुंदर कौवा मैंने नहीं देखा और मैंने सुना है तुम्हारी आवाज भी बहुत सुंदर है। क्या तुम मुझे एक गाना गा के सुनाओगे? प्लीज मेरी बात मानोगे? एक गाना गा दो ना। लोमड़ी की प्रशंसा सुनकर कौवा गदगद हो गया और उसने तुरंत गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, काऊ काऊ, तो वो चीज का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। चीज का टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ देखकर लोमड़ी बहुत ही खुश हो गई और उसको लेकर वो भाग गई। लोमड़ी उस चीज के टुकड़े को लेकर जब भाग गई तो कौवे को बहुत ही दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ। काऊ काऊ काऊ। वो सोचने लगा कि मैंने लोमड़ी की बात क्यों मानी, उसकी झूठी प्रशंसा क्यों सुनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे बहुत दुख हुआ। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ जी, बताइए। हम इस कहानी से बेटा ये सीखते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसकी झूठी प्रशंसा को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि पे विश्वास करना चाहिए, अपनी बुद्धि पे हमें विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। आवाज दोगे? लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनी है ना आपने? तो इसकी स्टोरी में आवाज दो। वंस अपॉन ए टाइम क्या होता है? ये हंगरी नहीं याद, चलिए हिंदी में बोलते हैं। एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी थी। वो घूमती हुई जा रही थी, उसके पास कुछ नहीं था। तब उसने देखा कि एक कौवा पेड़ पर बैठा है। पेड़ पर अनेक पक्षी बैठे थे, लेकिन कौवे को वो देखकर उसकी जीभ में पानी आ गया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत भूख लगी है, खाने को तो कुछ नहीं, लेकिन इस कौवे के मुंह में रोटी है, इसे कैसे हथियाया जाए? और जो है वो सोचती हुई इधर उधर मंडराने लगी, घूमने लगी, कैसे मैं इसको पाऊं। चलिए क्या करते हैं, कुछ तरकीब लगाते हैं। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब सोची। उसने कहा, कौवे भैया, कौवे भैया, आप कितने सुंदर हैं, आपकी वाणी कितनी सुंदर है, कितना मधुर गाते हैं आप, क्या मेरे लिए गाना गाएंगे? कौवा इतराने लगा और उसने जैसे ही काव काव की उसकी रोटी गिर गई नीचे, और जैसे ही रोटी नीचे गिरी तब लोमड़ी ने रोटी उठाई और चल दी। अब तो मैं ही इसको खाऊंगी। कौवा, अरे चलाक लोमड़ी,
तूने मेरे मुंह से मेरा खाना खाया, छीन लिया, अब मैं क्या खाऊंगा। हा 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 हा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी डायलॉग। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कहानी हम यही नहीं खत्म करेंगे। लोमड़ी जो है अपना खाना लेकर जा रही है, इतने में दूसरा कौवा वहां बैठा बैठा देख रहा था। तब वो आता है और लोमड़ी पर हमला करता है। जैसे ही वो लोमड़ी पे के चोंच मारता है, लोमड़ी फट से घबरा जाती है और ऊपर देखती है, उसके मुंह से रोटी गिर जाती है। दूसरा कौवा रोटी उठाकर भाग जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग कोई भी कहानी क्रिएट करेंगे किसी भी पक्षी के साथ। ओके, तो Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today I am going to tell you a story about 5 friends. Once upon a time there were 5 friends. They all are fighting. The first friend said, I am the best because I point and teach you. The second friend said, no, I am the best because I am the tallest one. Now, third friend said, no, I am the best because I wear wedding ring. Now, fourth friend said, no, I am the best because when we pray, I come first. They all are fighting. Now, fifth friend said, no, I am the best. Can you tell me? Can you write without me? Can you open and close without me? All friends said, yes, you are the best. Now the fifth friend said, no, no, we are nothing when we are alone, but we can do everything when we are together. The moral of the story is, united we stand, but divided we fail. Students, I hope you enjoyed this story. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Oh, I have to go and meet my friends on this boat. So nice. I'm so happy that today I'm going all of my friends. Hello, Mittu. How are you? I am Parrot. My name is Mittu. Oh, my friend, how are you? See, I am so beautiful. I have red beak and people love to keep me in their house. I am very intelligent. I have relatively large brain and I learn and am able to make the sound of humans. That's why they love me and keep me. I am so beautiful. Oh, that's very good of you. Caw, 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 caw. Oh, my friend Crow, how are you? I am fine, I am fine. See, nobody likes me because I am black in color. And whole day I roam here and there. But you know, I am very intelligent. But nobody loves me to keep in their house. Oh, no problem, my friend. Meet my another friend, Mittu. Hello, Mittu. Now my third friend is coming. Hello, my friend. Hello, hello. So how are you?
See, I have so large jaws and I used to cut anybody. See my wings, see me. Oh, ho, ho. See my friends, this is my small house. This is my small house and I am not at all proud of it, because you should all remember, we all have differences and that makes us unique. Everyone has their own perspective and that is the good. We are all gifted by God and we should appreciate this perspective. Thank you. Hello friends, it's a poem from class 1 NCERT book Maths Magic. The title of this poem is One More. One little bird singing I love you, one more joins in making them two. Two little birds resting on tree, one more joins making them three. Three little birds looking for more, one more joins making them four. Little birds wanted to die, one more joins making them five.